today we will have another technique that is called switching modulator, right? Yes, we have the second technique that we need, that is available, is that is your switching modulator, right? Let us see its block diagram. You can described by this. Okay, so ठीक है, राइटिंग बोर्ड विजिबल तुम लोगों को है? हेलो, Yes, sir. फट से बोलो ना ऐसा ना, दो आदमी तैयार रहो आपस में कुछ बोलने के लिए. So see, this is a block diagram for a switching modulator, and switching means you need a switch, and switch may be a diode, it may be a, you know that the switch diode works as a switch, right? So if this is a diode, okay, this is a diode. So diode is basically a switch, it is a unidirectional switch, right? So if uh, if this is a V1 and this is a V2, so if and this is your diode, so if V1 is greater than V2, then diode will be on, right? And if V1 is less than V2, then diode will be off. This is the simple theory of a switching of the diode. So similarly, you can, we are using a diode, you can use any, even transistor is also a switching device. Okay, so this you can, so it is called a switching modulator because we are using a switch, electronic switch over here. Okay, so we'll use this. I'm just showing here a diode, but in enthalpy happens. So this depends on the V1T. Okay, so we have this from here. You know that uh, this V1T, and this is a band pass filter as usual. You know that. So this, you know that this V1T, this is the carrier. So this will be your as per MT plus your carrier, that is your AC cos 2 pi FCT. So this becomes simply the summation of this. Now that depends of that is what is the voltage level. Okay, so if this voltage level uh, is more than this V2, obviously that is a zero voltage, obviously it will be, then it will be, so this means that so actually how it's happening. So if you take this, we are assuming uh, the output of this will be simply your this one, right? So what we are doing here is that
uh, now your CT is the carrier, right? This two signal will be the, and we know that this AC, this AC is your much higher than this MT, right? So it is assumed that is the carrier signal is a higher than your, and that we already know, that is modulating signal, this M, the modulation index should be less than 1, and it is only possible when AC is greater than AM. ठीक है ना? So this condition we have already done it. So this means this condition is true. Okay, this condition is true. So when uh, this is, and that is mean the carrier amplitude is higher than this modulating signal amplitude. So let us see that is what will happen. Now this carrier, the carrier is your uh, uh, sinusoidal wave. Okay, the carrier is sinusoidal wave. Okay, so this means it sometimes it will become a negative, right? So this means this CT, the magnitude of this CT will sometime it will be greater than 0, and sometime it will be less than 0, right? And we assume that is at the output V2 has 0. Okay, so when this is 0, then it will be uh, greater than 0, then it will be in this condition, and when it is less than 0, that is negative, then this will be true. So the net result will be this V2 will be V1T, that is, and now when it is on, जब डायोड ऑन होकर क्या मिलेगा, जो इनपुट पे वही आउटपुट पे मिल जाएगा, अदरवाइज इट विल गेट बिकम ए 0 simply, right? So with this condition we get like V2 will be equal to V1T if CT is the carrier greater than 0, and if it is 0 if CT is less than 0. Okay, so this is clear to you. Okay, now what will happen, what does it mean? What does it mean is that this V2 can be written here as the V2 can be written here as so this means you can write this V2 is actually a switching device. You can write this here as V1T into signal, let us say XT, right? Where XT is a train of pulses, right? This means you can say simply XT क्या हो गया आपका? So simply this XT will be either 1 or 0, right? So XT will be either 1 or 0. So XT को जब 1 and 0 करोगे, so when XT is equal to 1, so when XT is equal to 1, so XT will be simply a train of pulse. So this means at XT is equal to 1, then V2T will be equal to your V1T, and at XT is equal to 0, this V2T will become equal to 0. ठीक है ना? तो आपका ये रिलेशन कंप्लीट है. So this can be represented by this one, where, so this means what is happen is that this means
So this means the V2 can be used as a train of pulses, right? We can use a, so this xt will is simply a train of pulses, right? Where its frequency or the time period, where the frequency will be 1, or you can say the time period will be 1 by fc, right? Or you can say the frequency of the train of pulses will be equal to the carrier frequency, right? So that is the time period. Time period, what is the time period? The time period will be considered as, यहाँ से ले लो तो ये आपका टाइम पीरियड ले सकते हैं, when you start from time period, so यहाँ से आप टाइम पीरियड ये, so this is your t, okay? So time, so simply that is frequency of xt, or you can say the frequency of xt will be the equal to the carrier frequency. This is important, okay, because we are going to modulate it, okay? So now what it does mean, अब इसका क्या करना है, you take how to, if you take the Fourier series representation of this, you can represent, then you can simply write as, so the Fourier series you can represent this is a pulses, you can write how to represent a pulse in a Fourier series form. So simply you can say that these pulses can be, if xt can be written here as like this, okay? So now, and if you further simplify this, then this xt can be written simply like, if you further simplify, you can simply write this xt as this one, okay? So this is the simply simplification. This is the Fourier series representation. This is the Fourier series. Fourier series of xt, so you can represent in a Fourier series form, and this is simply the breakthrough of this one, okay? So for some signal, you can keep on, it will go up to infinity, okay? So we don't go for the infinity till that. So what that is mean is that, what this is mean is that, then what will happen to your V2T? Then the V2T is the simply, as you know, that is the V2T, V2T जैसा हमने पहले दिखाया था कि आपका V1T into XT, इन दोनों का फिर प्रोडक्ट कर लो. So if you product these two, you can write, instead of writing, I'm just copying and pasting it for you because it will save the time. So if you, then this means you can write this V2T, then the V2T can be written here as, okay? So simply put this relation value, and this you can write this V2 here, okay? Is it clear? अरे कुछ समझ में आ रहा है? क्यों बैठे तुम लोगों? Hello, are you hearing me? Yes, sir. Yes, sir. कुछ इसमें कोई प्रॉब्लम है? कुछ समझ में आ रहा है? कुछ नहीं समझ में आ रहा है? तो नहीं समझ वो बताओ, उसको बताया जाए तुम्हें. हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं? और क्या करना, हमें पढ़ना कहाँ है? देखो तुम लोगों का काम वही कि बस तुम लोग को लिखते जाओ, पूछना सवाल बेकार है. आगे चले? Yes, sir. Yes, sir. कुछ इसको लिख रहे हो? नहीं. Yes, sir. तो सर हम तो छत पे बैठ के सुन रहे हैं सिर्फ. फोरियर सीरीज पढ़ा था?
क्या पता सर, हमें पढ़ने से मतलब है। तुम लोगों को पढ़ाना बहुत मुश्किल काम भाई। सो इफ यू डू दैट, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, क्या आएगा करके बताओ तुम लोग अपने से। कोई कर रहा है? कहेंगे सब टाइम वेस्ट करेंगे सब। If you further simplify this, okay, simply it is a multiplication. So you will see that is if we can write this as this one, okay. So it is simple one. You can simply multiply. This is your. You know that uh, this is your V1t as from equation 1, okay. So simply multiply this and you can get this relation, okay. You keep on thinking that is our objective is to get AM wave, and AM wave का equation तुमको पता है, तो उससे compare करो where are you getting the AM wave or not, okay. So if you further अगर जो तुम मैनिपुलेशन करोगे तो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हमें लेना क्या है, व्हाट वी आर लुकिंग फॉर द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, एंड यू नो द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ AM। तो तुमको इस इक्वेशन में ढूंढना यह है कि AM कहाँ पे आ रहा है, राइट। सो AM इज, इफ यू सी दिस, दिस इज योर AM, ठीक है ना, दिस इज योर AM, ओके। सो इफ यू सी दिस, you can further simply you can write this, further simplify karo, so you can write this as this relation, okay. So you do know that the relation here is that, now why you have kept, I have simply find it out that we have this equation this term which is your AM, equation of AM, and what is this? This is your MT, that is message signal, and these are other double frequency signal, okay. So how to get this? Let me finish to remove kar do. So if you have to work out on this, so अब इसमें करना क्या है, दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। हमने एक मैनिपुलेट कर ये देख लिया कि हमारा AM सिग्नल अवेलेबल कहाँ है। नाउ व्हाट आर द फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल, ठीक है, फ्रीक्वेंसी कहाँ पे इस पे आ जाएंगे। सो इफ यू सी द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ दिस, spectrum of V2, right, you can write this V2F। तो तुम्हें फ्रीक्वेंसी कौन कौन सी मिल गई, राइट। सो यू कैन सिंपली इफ यू प्लॉट दिस फ्रीक्वेंसी, थोड़ा सा जगह कम है, सो आपको सिंपली कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे देखो, ये MT by 2, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, FM, ओके। सो वन फ्रीक्वेंसी यू हैव, लेट अस से हम इसको FM को यही प्लॉट करते रहे, यू हैव FM, ओके। और इस वाले केस में आ जाओ फर्स्ट में, इसमें कौन सी फ्रीक्वेंसी मिलेगी, ऑब्वियसली ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, तो FM और FC का प्रोडक्ट है, इट विल गिव 2 सिग्नल, और ये तुमको AC का, तो इट विल गिव यू, एक सिग्नल तुमको मिल गया FC, एक सिग्नल मिल जाएगा FC प्लस FM, और एक सिग्नल तुमको मिल गया FC माइनस FM, राइट। यहाँ से आ गया 3 सिग्नल। यहाँ पे क्या मिला, कॉस स्क्वायर 2 पाई FCT है, तो कॉस स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा कि ये डबल हो जाएगा, तो इट विल गिव ए ट्वाइस FC,
अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या है, mt प्लस ये 2 पाई एफ सी लिखते हो ना, तो 2 पाई एफ सी 3 से मल्टीप्लाई हो गया, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 एफ सी हो गया, 3 एफ सी। तो ये तुम्हारा आएगा और आगे चला जाएगा, मैं इसमें लिख नहीं रहा हूँ, इसमें तुमको मिल जाएगा 3 एफ सी प्लस एफ एम एंड 3 एफ सी माइनस एफ एम मिल जाएगा, राइट। सिमिलरली आप यहाँ पे आओगे तो ऐसे इन्फिनिटी तो चला जाएगा, राइट, इट विल गो अप टू इन्फिनिटी। फिर आपको मिल गया कितना है, ये आपका आगे cos 2 पाई एफ सी टी इंटू cos 6 पाई एफ सी टी आ गया, ठीक है ना। तो ये समझो ये तो एफ सी हो गया और ये 6 पाई 3 एफ सी हो गया, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 3 एफ सी प्लस एफ सी, ये आपका 4 एफ सी आ जाएगा, और 3 एफ सी माइनस एफ सी ये आपका 2 एफ सी आ गया। तो दिस इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट ऑल द फ्रीक्वेंसी, बट इट विल गो अप टू इन्फिनिटी, तो फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ती चली जाएगी, वी आर नॉट कंसिडर, इट विल गो अप टू इन्फिनिटी। नाउ व्हाट वी आर इंटरेस्टेड, हमारा इंटरेस्ट, हमारा एम सिग्नल कौन सा है, एम सिग्नल हमारा ये सिग्नल है, राइट। तो हाउ टू एक्सट्रैक्ट, यू यूज अ बैंड पास फिल्टर, ये आपका बैंड पास फिल्टर करके यूज अ बैंड पास फिल्टर बैंडविड्थ and you can get AM signal. So this is your AM signal, okay। ये FM को भी हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, AM चाहिए। So that is why in the block diagram we have used a band pass filter, okay। So after using a band pass filter, इसको मैं थोड़ा सा जो है मैं ऊपर ही डिलीट करता हूँ, ठीक है ना। So after using a band pass filter, so at HT, after बैंड पास बीपी फिल्टर, हम लिखते हैं बैंड पास फिल्टर, वी गेट एच टी इज इक्वल टू, इसको तुम जो है यहाँ पे जो है इसको लिखते रहो, so we get this relation, right। So this is your modulated signal, right। So this is your AM signal, right, AM wave required, okay। Of course there are some parameter जो आपको जो है इसमें डिस्टर्ब करेंगे, बट दैट कैन बी सॉर्टेड आउट। सो फाइनली नो, ये तो तुम्हारा जो है स्टैंडर्ड वाला था। Now if you compare this with this standard AM, ठीक है ना, इसको कंपेयर कर लो स्टैंडर्ड AM से। So if you compare this with the standard equation, आपको पहले हमने बता चुका था, तो if you, but we have to always compare with the standard, क्योंकि हमें क्या करना था, हमें इसी वेव को निकालना था, right। So if you compare this, यहाँ पे you have to find out KA। So here your KA is your 4 by pi and AC, ठीक है ना। So this is your amplitude sensitivity, you can compute from here। So that is the so final equation we have calculated। Now the problem is only that you have to develop a good quality band pass filter, and developing a good frequency band pass filter is very easy, because the difference in the frequencies are very large। अगर जो frequency very close है, then the filter designing is very difficult, whereas in this case the frequencies are much, because you know that this FC is much higher than FM। तो आपका FN यहाँ के ऊपर है, so FC will be much farther। So the gap between these two frequency, एक frequency यहाँ पे, एक frequency is very large, और फिर आपका यहाँ से लेकर 2 पाई FC is very large, और इसके आसपास ही बहुत दूर है। So it is very simple,
यू कैन यूज ए इसका इसका इनका नेट रिजल्ट क्या हो जाएगा कि यू कैन यूज ए लो कास्ट बीपी, यू कैन यूज ए लो कास्ट बैंड पास फिल्टर। सो आपका इसका मतलब क्या हो कि कास्ट विल रिड्यूस। बैंड पास फिल्टर अगर जो फ्रीक्वेंसीज आर वेरी वेरी क्लोज तो आपको डिजाइन करो वेरी हाई क्वालिटी बैंड पास फिल्टर। आप फिल्टर कह लो सिंपली, यहाँ तो बैंड पास फिल्टर, बट डिजाइनिंग ऑफ ए गुड क्वालिटी filter is very costly, whereas a low quality filter can be designed। कहाँ चला गया? ठीक है, तुम लोग दिख रहा है ना, बोर्ड दिख रहा है तुमको? Yes, sir. Okay, so the low cost I mean filter designing, अगर जो फिल्टर बहुत ही शार्प नहीं होना है, if it's not sharp cut off, then the filter cost will be low। और हमने आपको क्या कहा था कि सर्किट्स हमारी ऐसी बननी है जिसकी कॉस्ट कम हो, क्योंकि मार्केट में प्रोडक्ट वही आपका एग्जिस्ट करेगा जो लो कॉस्ट होगा इन टूडेज सिनेरियो। सो द अपार्ट फ्रॉम ऑल द रिक्वायरमेंट of your circuits, of your system, the one of the most important parameters that you have to consider in designing, that is the cost of the system। So in this case, because a low cost a low quality band pass filter is sufficient for filtering out the irrelevant frequency signals, so the cost will be come down। and you know that is we are using simply a diode, एंड डायोड इस दोनों सर्किट्स में डायोड सिंपली यूज कर रहे हैं, और डायोड की कॉस्ट बहुत कम होती है। डायोड इज आल्सो ए लो कॉस्ट डिवाइस। सो ओवरऑल ये क्या चीज आपका है? एडर, ठीक है ना? ये क्या चीज है? एडर कैसे डिजाइन होता है? एडर की सर्किट कैसे बनती है? एडर बनाया तुम लोगों ने कभी? नहीं सर, बनाया था, मैं याद कब से रहेगा, उसकी जरूरत क्या थी? हाँ जी बोलो, अबे कुछ तो बोलो कि मुझे नहीं पता है। बड़े सुंदर लोग यार, क्या हो भाई? ये सब इन लोगों की अटेंडेंस कहाँ है जाके? एक सेकंड की मैं तुम लोगों से बात तो कर लूँ। कितने 38 स्टूडेंट्स अवेलेबल है? चितरंजन कुमार, ये कब अब इसको जो है, हाँ भाई कौन है? Anybody else? Can you study? Have you studied a design an adder circuit? Sir, A exclusive or B? A exclusive और B? अरे मैं पूछ रहा हूँ, एडर सर्किट बनाया कभी है? कहीं पढ़ा तुमने एडर सर्किट? दो सिग्नल को ऐड करना है तो ऐड कैसे करोगे सर्किट से? सर उन लोगों को एक्सक्लूसिव और से ऐड होता है? तुम गधे हो क्या? बिल्कुल। अभिषेक भारद्वाज, अभिषेक, यस सर। तुमने कहीं दो सिग्नल को ऐड करने के लिए एडर सर्किट बनाया है? सर लास्ट टाइम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में था। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से लॉट से इसमें डिजिटल सिग्नल है, V1T तुम्हारा डिजिटल सिग्नल है कि एनालॉग सिग्नल है? एनालॉग। तो एनालॉग को तुम डिजिटल से ऐड कर दोगे? नो सर। तो एनालॉग एडर बनेगा ना तुमको। अब बताओ, याद आया कुछ? ये कहाँ पढ़ोगे? एनालॉग सर्किट से पढ़ोगे ना, एनालॉग डिवाइसेस में। यस सर, एनालॉग पढ़ा था तुमने? क्या करना है सर पढ़ने से? हमें कोई मतलब थोड़ी पढ़ने से है ना, पढ़ने का फायदा क्या है? हाँ जी, कोई और? एनीबॉडी एल्स? अबे ऑप एम्प बेस एडर सब्ट्रैक्टर इंटीग्रेटर सर्किट नहीं पढ़ा तुम लोगों ने था? यस सर। क्या है सर? कौन बोल रहा है? अभिषेक, पढ़ा था? यस सर, पढ़ा सर। याद आ रहा है कुछ? दिमाग में घुसा कुछ?
कौन है ये? नहीं सर, अमनदीप ऑप एम्प की मदद से सर डिफरेंट सिग्नल को सर लगाते थे वहाँ पर रेजिस्टेंस से पास होने के बाद सर आपका अमनदीप कनियाल। फैसल तुम यहाँ मोबाइल बंद करो। अमनदीप कनियाल हो तुम यहाँ पे? ये अनुराग झा मीटिंग लेफ्ट कर रहे हैं, इन सबों को तो बिल्कुल 0 नंबर देना है। जो जो मीटिंग ले सबके मैं यहीं पे अटेंड मार्क्स ले रहा हूँ, ठीक है ना? टेस्ट में भूल जाइए आप लोग जो है। अमनदीप कनियाल, अमन मलिक, अमन मलिक सर। ये तुम लोग जो है जब क्लास ज्वाइन करते तुम क्लास में रहते हो, तुम लोग कहीं और रहते हो? हेलो अमन मलिक, तुम कहाँ बैठे हो? यस सर। कहाँ पे बैठे तुम हो? घर पे हूँ। तुम्हारी तो पहाड़ पे फोटो आ रही है ना? फोटो तो पहाड़ सर पे। वो पुरानी फोटो है सर वो। तुम्हारे पास नोटबुक है? यस सर। तुमको ऑप एम्प बेस एडर पढ़ा था? ऑप एम्प बेस एडर पढ़ा था तुमने? यस सर, पहले पढ़ा था। अबे मैंने एक का पूछा तो पहले पढ़ा था, एक का पढ़ा था तुमने? यस सर, पढ़ा था। सर्किट तुम्हें याद है उसकी? यस सर। हाँ, तो तुमको जब मैंने सवाल पूछा तुम्हें समझ में बात आई, जवाब दिया तुमने उसको, जब तुम्हें पता था तो? तुम लोग को लगता नहीं कभी तो तुम शर्म नहीं आता तुम लोग को यार पढ़ने? कब तक कब पढ़ना शुरू करो तुम लोग? ठीक है, सो तुमको पहले ही बता चुका था कि थोड़ा सा जो चीजें तुमको 2 चीज बताई थी, क्या क्या पेपर तो जो पेपर पढ़े हो सब्जेक्ट उनका कोई इस्तेमाल है कि नहीं इस्तेमाल? काली पढ़ा गया तुमको था इसलिए। तो यू कैन वो आ गया तुम्हारा राइटिंग बोर्ड दिख रहा है तुम्हें? इज इट विजिबल? यस सर। लोगों बात करने मतलब वेस्टेज ऑफ टाइम और अपना दिमाग खराब करना, तो तुमने तय कर रखा हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? तो नाउ मैं कहाँ पढ़ा था? सो आइडर, so you can develop a circuit in your laboratory. So you can develop a circuit in laboratory. Either you can design. I told you we are going only a mathematical and circuit you have already studied. They are all circuits you have studied. You have studied the filter circuits. You have studied the adder circuit. You have switching the diode as a switch, right? So all these circuit you can develop in your laboratory, okay? And you can see the output waveform as well, okay? So क्या करना है इसमें? But ठीक है, so that is end, okay? Time लग गया. Now we'll go for your demodulation, okay? ठीक है, इसमें तुम लोग कुछ पूछना तो पूछना ही बेकार है, तुम लोग कुछ पूछना है नहीं कभी भी, ठीक है ना? उसमें तो यूजलेस है. सो इफ यू हैव, मैं थोड़ा सा और जल्दी से पढ़ा दूँ इसलिए तुम लोग को थोड़ा सा जो है इसको पहले स्टार्ट प्रेजेंटेशन करें. That is how to सो इसको पीपीटी पे देख लो, तुम लोग को ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से फायदा नहीं है, ठीक है ना? सो यू हैव, कुछ होगा तो बता दूंगा तुमको, ठीक है? सो मैंने कहा जैसे ट्रांसमिटिंग एंड पे तुमको जो है मॉड्यूलेशन करना होता है, रिसीविंग एंड पे यू हैव टू डू द प्रोसेस ऑफ डीमॉड्यूलेशन. डीमॉड्यूलेशन क्या है?
demodulation is that how you can extract the modulating signal at the receiver end. ठीक है ना, तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्या तुम्हारा रहेगा, एमटी को निकालना है, एमटी को हमें, सो इसमें भी आपका जो है सिंपल जो है या दिस स्क्वायर लॉ डिवाइस, इसमें आपका क्या है, सो इसी द एकदम जो आपका स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर हमने यूज किया था, यू हैव यूज ए स्क्वायर लॉ डिवाइस, द सेम सर्किट can be used for your same principle, not the same circuit, principle will be the same, the circuit will be different, the same principle can be used for your demodulation of this standard AM wave. Here only difference is this is square law device, here it is you have only a low pass filter, right? So a low pass filter, instead of a band pass filter, we will use a low pass filter. The reason is that is we want to find out MT, and MT is a modulating signal, is a low pass signal, that is why we use a low pass filter. So अब इसके अंदर बिल्कुल स्टैंडर्ड तुमको पता है, यहाँ AM वेव है, so AM वेव you know that is ये आपका V1 हो जाएगा, आपके ये यहाँ पे V1T है, इसको लिख लो। और सर आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है, स्क्रीन विजिबल नहीं है, पीपीटी दिखनी है तुमको, है अभी क्या दिख रहा है तुमको, हाँ क्या दिख रहा है सर? अभी स्क्रीन नहीं आ रही आपकी, स्क्रीन नहीं दिख रही सर, स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा तुमको, कुछ तो दिख रहा होगा ना, सर स्क्रीन शेयर ही नहीं है। अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं है तुम्हारी, ठीक है चलो स्क्रीन शेयर कर देते हैं फिर। अब क्या हुआ, अब देखा? नो सर, ऐसा दिख गया सर। अब दिख रहा है? यस सर। स्लाइड मूव कर रही है? यस सर, डिमॉड्यूलेशन ऑफ, नहीं स्लाइड मूव कर रही है इसके बाद? नो सर स्लाइड मूव नहीं कर रही। पीपीटी में यही प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं पीपीटी जो है ना बंद नहीं आता तुमको। चलो एक मिनट, वो इसमें इंटायर स्क्रीन करना पड़ेगा तुमको। क्या दिख रहा है, स्क्रीन दिखा? यस सर दिखा। पीपीटी मूव कर रही है? यस अब सर, अगले स्लाइड दिखिए। ठीक यस सर, यस। इसमें प्रॉब्लम का, जब तक पूरा एंटायर स्क्रीन ना करो ये अभी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सो नाउ यू सी, बस 5 मिनट तुमको दिखा दे रहा हूँ, तुम लोग को सिर्फ देखना ही तो है ना। सो मैं क्या कर रहा था इसमें, ये आपका V1T है, मैं लिखना भूल गया, V1T है आपका, और ये यहाँ पे V2T है, राइट। So V1T is well your AM wave. AM wave का इक्वेशन है AC1 plus KAMT cos 2 pi FCT, you know already. So V22 क्या आ जाएगा आपका, ये बिकॉज इट इज स्क्वायर लॉ डिवाइस, स्क्वायर लॉ डिवाइस का एक्सप्रेशन पहला आपको याद होगा, K1 V1T plus K2 V1 स्क्वायर, बिकॉज दिस इज स्क्वायर लॉ डिवाइस, दिस फॉलो दिस रिलेशन, ठीक है। So if you work out, they put the value of V1T in your expression, you will find this expression, ठीक है ना। वो आपको बिल्कुल वर्कआउट ऐसे सिंपल मैथमेटिक्स करनी है, अपने से कभी करोगे तुम लोग को समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे तुम देख के चुपचाप सोते रहोगे, और क्योंकि तुम लोग सिर्फ देखना ही चाह रहे थे इसलिए मैं स्लाइड्स पे तुम्हें दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। सो ये आपका इसको जो वर्कआउट कर लो। सो V2 अगर सिंपल इसको पूरा रिलेशन पुट कर दिया हमने, ठीक है ना, ये स्क्वायर, ये K2 V1 स्क्वायर और ये K1 V1 आपका हो गया। नाउ यू कैन फर्दर एक्सपेंड दिस, सो द फाइनली इफ यू वर्क आउट विद दिस वन, फाइनल रिलेशन यू विल गेट दिस रिलेशन, ओके, फाइनल रिलेशन यू विल गेट दिस रिलेशन। नाउ दिस रिलेशन में आपको क्या करना है, आपको क्या निकालना इसके अंदर है, यू हैव टू फाइंड आउट MT,
ठीक है ना। एमटी कहाँ कहाँ के ऊपर है, ये देखिए एमटी सिर्फ यहाँ के ऊपर है, राइट। ऐसा सिग्नल, ऐसी कंपोनेंट जिसमें सिर्फ आपका एफएम सिग्नल अवेलेबल हो, तो ये सिग्नल जो आपका ये कंपोनेंट है इसमें सिर्फ एमटी है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी एफएम, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी K2SY2, इस टर्म की फ्रीक्वेंसी कितनी है 250 FC। हाँ सर 2 टाइम ये कहाँ से 2 टाइम कहाँ से होगा जी, Zero, sir. K2AC²/2, इसकी फ्रीक्वेंसी 0, जो डीसी कंपोनेंट ऑल आर कांस्टेंट, दिस बिकम्स ए डीसी, ओके। सो दिस इज ए, इसकी फ्रीक्वेंसी 0 हो गई, राइट। एंड इसकी m² हो गई तो 2FM हो जाएगा, बाकी को छोड़ दो तुम, ये सब दे आर FC है, इट इज वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। So when you pass through a low frequency low pass filter क्या होता है, वो 0 से लेके FM होगा। So then you will, so the output you will get this term plus this DC component। एक्चुअली यहाँ प्रॉब्लम सिर्फ ये हो जाती है कि जब लो पास फिल्टर लगाओगे तो तुमको FM भी मिलेगा और एक DC कंपोनेंट मिलेगा। DC कंपोनेंट की प्रॉब्लम क्या होगी, और DC ऐड कर दोगे तो उसकी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, DC सिग्नल ऐड करोगे तो अगर जो उसके साउंड को देखोगे तो तुम्हारे रिसीवर में एक हमिंग साउंड आएगा, तुम्हारी अगर म्यूजिक चल रही है तो गाना भी सुनाई देगा, और नीचे नीचे बिकॉज ऑफ डीसी कंपोनेंट एक आपको कंटिन्यूअस हमिंग साउंड सुनाई देगा। सो दैट इज ए डिस्टर्बेंस। तो इस डीसी कंपोनेंट को रिमूव करना इज ए वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क। ऑल्दो इंजीनियरिंग के अंदर बहुत सिंपल है ना, दैट आप एक कपलिंग कैपेसिटर लगा करके इसको रिमूव कर सकते हैं, but it never removes, happens practically. So theoretically by you can we try to remove the DC component, right? And if it is not removed, yeah, you can say if it is not filtered out properly, then but आपको simply कि this FM is also very very low, जब DC component लगाओगे तो इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी, but practically this DC component creates a lot of noise इन योर रिसीवर, ठीक है ना। तो इसको रिमूव करना एक डिफिकल्ट टास्क है, बट यू कैन हैव ए वेरी सिंपल सर्किट यूजिंग ए लो कास्ट सर्किट, यू कैन रिसीव में सिंपल। अगर एक कपलिंग कैपेसिटर लगा दोगे, अप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ कपलिंग कैपेसिटर, then this DC में भी component will be reduced, इसके minimal it can never become a 0, right? So this is I think this is all, इसको नहीं करना भी है, ठीक है ना। So that's fine, I finish over here. Any question? No, ठीक है। ठीक है, ओके। सो अटेंडेंस कर लो बस तुम लोग का।